In medical field, I mean, is it the theory, what we study in the classes, is it different from what we experience in the hospital? थोड़ा पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह अगर बच्चे हैंडल करना शुरू कर चुके होते हैं ना, देन दे डेवलप दैट स्किल. What is the biggest mistake which students make while preparing for their NEET, PG or SS? If you ask me one mistake will be, I very ask कि सर आपने गूगल वर्ड देख रखा होगा, है ना? दिन में हर बार हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, द वर्ड गूगल कम्स अप. कैन यू टेल मी द कलर ऑफ द फर्स्ट ओ? ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने देखा कि काफ़ी डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हुए, जब डॉक्टर सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन था. तो व्हाट इज योर टेक? इन जनरल सोसाइटी का ना पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो गया है. ठीक है, आपको 10 मिनट में कोई भी सामान आ जाता है आपके पास, आप फोन करके ऑर्डर कर लेते हैं. कुछ भी चाहिए आपको गारंटी मिल जाती है 30 मिनट 10 मिनट पे. People claim that they have cured their cancer from through this intermittent fasting. कि नींबू पानी पी लो, neem leaves have it. Recently, one cricketer turned politician also claimed about this thing. हमें भी बहुत दुख होता है सर, एंड आई फील कि इसमें कि मैं बहुत ज्यादा गलती नहीं मानता. Most medical students don't lack hard work. They lack clarity, mentorship, and honest conversation. Welcome to Etchala podcast, where education meets wisdom and not just information. Our guest today is someone many of you already know, follow, and respect. He is a cancer surgeon by profession, a strong voice for discipline and fitness, and someone who speaks honestly about the realities of medicine without any false motivation. So, I welcome Dr. Kushagra Rahul with all my heart, with all my soul on this platform of Etshala. Thank you, Thank the you, pleasure guys, is all for mine. coming Go ahead. here. All right. So, doctor, my first question from you would be about your journey to this MCH. I mean, most of the people, they just only see the title, okay, that you are a cancer specialist, but they don't see the process, they don't see the journey. So, I want you to take us through your journey from your 10th class to your MCH. I mean, how exactly when you decided that you want to be a doctor, and how even the students after the 10th standard exam, how they must choose this, how they must make this decision. Well, a very valid question, actually. One of the problem lies here itself. The decision should not be made exactly at 10th class. The aptitude, or the orientation, or whatever it is, the inclination towards the subject, that should come bit before, like when you're in class 7 or 8, when you start making a few decisions on your own, when you start going out of your house on your own. One of the trends that I feel is really lacking in Indian households in our scenario is summer internships, where the Western world has, is leaps and bounds ahead of us. I really feel that, I had a bit of exposure. Well, I had a lot of exposure because my parents are doctors, but many of the students, they just go with the flow. And I feel, जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, क्लास 7th से, आई फील 6 7 से ना, पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ दिन कुछ हफ्ते, दे शुड start, sending their kids for just observerships या internships, कहीं पे भी जो नोन जगह है, कई सारे पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं इधर उधर, तो उनको भेजना चाहिए टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू सी हाउ थिंग्स वर्क, टू लेट देम जनरेट देयर ओन पैशन, सो दैट एग्जैक्टली एकदम ऐसा 10th में आके ऐसा वन साइड अदर साइड वाला डिसीजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मनी ऑफ द स्टूडेंट्स नीड मच मोर टाइम. एंड कई बच्चों का डिसीजन हुआ ही नहीं रहता बिकॉज सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज नेवर पुट ऑन देयर शोल्डर्स बिफोर, एंड सडनली यू आर मेड टू टेक अ डिसीजन योर होल लाइफ विल डिपेंड ऑन. तो बच्चे फिर ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते, देन देयर इज अ लॉट ऑफ रिग्रेट, बाद में मेंटल इश्यूज होते हैं. सो दैट्स व्हाट आई फील इज थोड़ा पहले से ही इंटर्नशिप वगैरह होनी चाहिए, ऑब्जर्वरशिप्स होने चाहिए, समर स्कूल्स या कुछ वैसा एक्सपोजर तो होना चाहिए. या एक्चुअली आई थिंक दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. बच्चों को सही मेंटरशिप नहीं मिल पाती, एजुकेशन लेवल क्योंकि लो है, पेरेंट्स ठीक से एक्सपोजर नहीं दे पाते अपने बच्चों को. इनफैक्ट इवन आई इफ आई टेक माय एग्जांपल, तो क्योंकि मेरे स्कूल में कुछ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आते थे रेगुलर, और मुझे उनसे एक एक्सपोजर था, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट मोटिवेटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. बट ज्यादातर लोग तो 10th में एक अपना हायरार्की बन गया है कि जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं दे शुड गो फॉर एमबीबीएस इवन इफ दे डोंट हैव द एप्टीट्यूड फॉर दैट. So I believe it's a हाँ, serious problem in India.
एंड इन दिस रिगार्ड आई बिलीव कि मेंटरशिप एक अच्छा रोल प्ले करता है कि बच्चों को एक एक्सपोजर मिले, जैसा आपने कहा अमेरिकन यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में ये काफी हद तक होता है, बट सर्टनली क्योंकि इन इंडिया। सर वहां पे मतलब, हाँ, वहां पे बच्चे जाते हैं, काम वगैरह करते हैं, काम को ऐसा तुच्छ वगैरह नहीं समझते, अलग अलग अपनी पॉकेट मनी खुद निकालो वाला वो रहता है, तो थोड़ा बच्चे मतलब बाहर का एक्सपोजर थोड़ा अच्छा रहता है उनका, हल्के बड़े हो जाएं। All right. So, doctor, was it because just because of your exposure you decided to get into medical field, or there were some other qualities, some other aptitude that we should look for? Well, actually, if you really, I don't think I'm the perfect candidate to answer this question because मेरा बहुत ज्यादा aptitude था नहीं मेडिसिन की तरफ. I was more into कुछ ऐसा स्टोरीज वगैरह लिखता था. So my mother asked me कि you should finish off your studies and then do whatever you want to do. तो उस चक्कर में भी बच्चों को लगता है कि यार जो मम्मी पापा कर रहे हैं दैट इज द इजीएस्ट जॉब. सो आई गेव द कॉम्पिटिशन एंड आई गॉट इनटू एमबीबीएस. It was only till my clinical postings began, that was in second year, that I realized the importance of it all, the gravity of the situation. I really fathomed कि उस समय कि a paragraph that I read today, a family's life will depend on it, of course, because if you are treating a bread earning member of the family, तो पूरा परिवार बिखर सकता है. And then I really sat down and I called out my mother. I told her कि I think whatever I've done, let it be. अभी तक का I must finish my MBBS very nicely. I'm not going to get distracted from second year onwards. First year में मैं बहुत ऐसा इधर उधर वो करता रहता था. I would only study what I liked and all. But then from second year, I started giving a lot more importance. And from there, after my MBBS, I had actually gone back. I went to Mumbai and I was there. I experimented quite some time with the media. And then I realized that I was not made for that. I was made for medicine only. So then I prepared and I got through MS. And then I went to Mumbai once again, this time as a for my master's in surgery at Grant Medical College. And उसके बाद फिर of course I developed interest in onco surgery because of again seniors का mentorship रहता है. My senior who had the most impact on me ended up taking up onco surgery. So we all, most of us followed in his path because onco में भी there's a lot more to be done. बाकी में काफी कुछ already achieve हुआ है, but here there's a lot of a lot of ground to be covered. So it is really interesting. So we took up oncosurgery. All right. So I believe that initially, I mean, you were not much interested in this field, so you took it because of your exposure. But then finally, you Mhm. realized that your aptitude is there. I mean, without aptitude, I mean, the things would not have been possible. So that's great. I think I believe कि फिर ये again mentorship का role showcase करता है, and the kind of exposure that you got. Okay, you became serious after that, and the kind of guidance you got. So I mean that's play a very important role. I mean I often say this thing in my class also, that there's nothing called a self-made man. We are made up of thousands of others. So I believe Definitely. कि so certainly no, that's a great insight, doctor. Acha, tell me one thing. I mean, what is the biggest mistake which students make while preparing for their NEET, PG, or SS? I mean, how exactly? I mean, the common mistake which you see among most of the students, and how they should make this decision that whether they should go for MD or MS or SS. What I mean, the different fields which are there in it. Hmm. So this is basically a two-parter question. I'll take up the first part first. And I think this time I am the correct candidate to answer this. If you ask me one mistake will be revision. Okay. And not just revision, focused revision. And I very commonly ask, one question. If you allow me, I'll ask that to you also, because ये जो है Right. ये प्रॉब्लम हर उसमें रहता है. आई वेरी आस्क कि सर आपने गूगल वर्ड देख रखा होगा, है ना? दिन में हर बार हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, द वर्ड गूगल कम्स अप. कैन यू टेल मी द कलर ऑफ द फर्स्ट ओ? Certainly not. I mean, वी कांट, इवन दो हम लोग 15-20 साल से हर दिन 100 बार देख रहे हैं. तो बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल. कोई कह सकता कि हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा नहीं. बच्चे बोलते हैं सर हमने तो पढ़ा था, हमारा नहीं हुआ. बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि
वो छोड़िए, जी का भी कलर आप नहीं बता पाएंगे विद कॉन्फिडेंस, एंड हम्म, ऑप्शन तो वही चार रहेंगे ना सर, ब्लू ग्रीन येलो रेड। हम्म, तो बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को समझ में नहीं आ पाता कि गलती कहाँ हुई। तो आई फील इट इज नॉट जस्ट रिविजन, आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने चाहिए, ताकि आपको पैटर्न समझ में आए, माइंडसेट समझ में आए। क्यों? क्योंकि यार, क्योंकि सर इंसान ही है जो कि क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो जिन्होंने compete कर लिया था उनके ऊपर ही कार्यभार डाला जाता है क्वेश्चन सेट करने का। मुझे पता है, जब हम लोग रेजिडेंसी में थे तो हम नहीं भेजे थे, हमारे दिमाग में वही क्वेश्चंस चलेंगे जो हमने सबसे ज्यादा सॉल्व किए हैं। तो इसीलिए वो पैटर्न, वो थॉट प्रोसेस रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमेशा देखिए, उससे आपका ब्रेन ट्रेन होगा कि करना क्या है। देन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वो टॉपिक्स में स्पेसिफिकली वो पॉइंट्स आपको दिखने शुरू होंगे कि हाँ इससे क्वेश्चन बन सकता है, या इससे क्वेश्चन आया हुआ था तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये शायद रिपीट हो सकता है। उसके बाद आप जब रिवीजन करें, देन चीजें, देन रिवीजन भी छोटा करते जाना होता है। एक और जो मिस्टेक बहुत बड़ी होती है, बच्चे छोटे छोटे टॉपिक्स जो एग्जाम में होते हैं उनको एक एक दिन पहले पूरा पढ़ लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। वो एकदम जैसा ना अपने आप को एज अ फॉल्स मोटिवेशन देने जैसा, बिकॉज ऑब्वियसली आप सारे सवाल सही कर लेंगे, आप मतलब ऑप्शंस में आपको 2.1 2 3 4 उतना तक याद रहेगा अगले दिन, बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट डे जब 19 सब्जेक्ट आपके एक साथ आने वाले हैं। तो आई पर्सनली टेल ऑल माई स्टूडेंट्स की नेवर रीड इमीडिएटली बिफोर फॉर अ टेस्ट दैट हैज अ स्मॉल टॉपिक। आप एक हफ्ते पहले पढ़िए एंड आप छोड़ दीजिए, कुछ और अपना पढ़िए, आप टेस्ट दीजिए। आपके 100 में से 50 गलत होंगे, 50 सही होंगे। जो 50 सही हो गए वो आपको एग्जाम वाले दिन भी याद रहेंगे, ठीक है, वो आपके ब्रेन में जा चुके हैं। एंड देन 50 जो गलत हुए, दोज आर द टॉपिक्स यू नीड टू रिवाइज। तो यूज दैट टेस्ट एज अ टूल, टू पेयर इट डाउन। लास्ट में आपका रिवीजन का इतना ही रह जाएगा, यू कैन इजिली रिवाइज ऑल दैट। तो उससे ये भी खत्म हो जाता है कि लोगों का डर, मार्क्स वैसे ही कम आने वाले हैं कोचिंग वाले में, तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम लगता है। वरना बाद में क्या हो जाता है, बच्चों को लत लग जाती है अच्छे रैंक की कोचिंग में, वो घबरा जाते हैं, लास्ट में उनका पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, टेस्ट के लिए ही पढ़ने लगते हैं। एंड देन इन द एंड आई हैव सीन मेनी 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 एग्जांपल्स जो कोचिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे, बट फाइनल डे पे थोड़ी उनकी रैंक नीचे आ जाती है एज एक्सपेक्टेड। सो दिस इज जस्ट व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। आई benefited hugely from this, so I hope matlab others also. And Kushag, tell me one more thing. I mean, in medical field, I mean, is it the theory, what we study in the classes, is it different from what we experience in the hospital? I mean, theory ज़्यादा important है कि on ground experience ज़्यादा important है? हाँ, तो सर एक्चुअली ये क्वेश्चन बेसिकली इंजीनियरिंग साइड से आता है कि हमने जो पढ़ा उसका हमें कोई यूज नहीं हो रहा है काम में। कंपनी जो है ट्रेनिंग के लिए हमें लेती है, हमें सिखा देती है एंड वो करवाती है। थैंकफुली मेडिकल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो डे वन से पढ़ते हैं एंड जो 4.5 साल पढ़ते हैं, वो सारा कुछ कहीं ना कहीं हर दिन यूज होता है। बिकॉज इफ आई एम अ सर्जन, अगर मैं ब्लेड रख रहा हूं तो आई हैव टू नो दी सर्फेस एनाटमी, आई हैव टू नो कि नीचे क्या आने वाला है, आई हैव टू देन पेशेंट को हुआ क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन में है या परफोरेशन में है तो पैथोलॉजी आ गई, देन इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्या दवाइयां उसको पड़ी हैं, वो फार्माकोलॉजी आ गई कि एंटीकोएगुलेंट पे तो नहीं था, क्या देना पड़ेगा क्या नहीं देना हम्म, पड़ेगा। मेडिसिन वाला पार्ट आ जाता है, उसकी कोमॉर्बिडिटीज रहती हैं, रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, तो कम्युनिटी मेडिसिन आ जाती है। तो इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग। तो दैट इज वन थिंग कि ऐसा कभी भी नहीं लगता कि हमने कुछ पढ़ा था और वो मतलब जाया जाने वाला। इट ऑल गेट्स यूज्ड अप समवेयर और द अदर। हम्म, तो दोनों ही। एंड देयर अ वेरी फेमस सेइंग सर हमारे में, बाय सर विलियम ऑस्नर। उन्होंने कहा था कि रीडिंग थ्योरी विदाउट गोइंग टू द क्लिनिक्स is sorry going to clinics without any theory is like sailing uncharted seas। आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं, and all theory with no clinics is like never had to set sail at all, मतलब आप कभी गए ही नहीं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हम्म, कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों ही करना exactly. Yes. रहता Yes. I mean, I think engineering में ये problem बहुत है because in civil है। services 70% of the students are engineers. इंडिया में कहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग आदमी इसलिए करता करता वो इसलिए नहीं कर रहा कि इंजीनियरिंग करनी है, बल्कि ये जानने के लिए करता है कि उसको करना क्या है लाइफ के अंदर।
So that's a big issue that we see among students कि एक्चुअली सर, हाँ आपकी बात सही है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये चीजें मतलब ऐसा वेस्टेड हैं, बिकॉज इट इज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट कोर्स। जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है इंडिया में, दे आर ऑब्वियसली डिफिकल्ट। तो बट मुझे लगता है कि इट ब्रिंग्स इन डिसिप्लिन, कि yes, आपको इतने टाइम फ्रेम में इतना पढ़ करके एग्जाम देना है। ऑल्दो मैंने मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मतलब दोस्त देखे हुए हैं, वो लोग तो मोस्टली लास्ट 3-4 दिन ही पढ़ते थे। बट आई फील समवेयर आपको स्ट्रेस मैनेज करना एंड वो एग्जाम अ सर्टेन लेवल ऑफ इट डज डेवलप यू। बट हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही इधर का उधर वो हो जाता है, तो दैट इज समवेयर नहीं, sir, in समथिंग fact, शुड बी डन। I can narrate my story also. I have done physics honors and now I'm teaching philosophy to the students. So it's a completely different thing for me. So I think it's a very big question in India कि बच्चों को पता ही नहीं होता एग्जैक्टली कि टेंथ के बाद उनका एक्चुअल एप्टीट्यूड है क्या और उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। एक्सपोजर उन लोगों को मिलता नहीं है, तो जहां अपॉर्चुनिटी आई वो वहीं पर चले जाते हैं। तो आई थिंक उनकी पोटेंशियल का और बहुत ज्यादा अच्छा यूज हो सकता है। हाँ आपकी बात सही है, बट ये बात सिर्फ ऐसे कह देने से कि बच्चों को एक्सपोजर नहीं है, हमें हमें ये सोचना चाहिए कि एक्सपोजर किस तरीके से देना चाहिए। लाइक आई देना हैड रियली थॉट रिटर्न, उससे फिर मुझे लगा कि जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं उसी समय बच्चे चाहिए। थोड़ा फ्री होते हैं। फ्री वरना होते तो हैं। टेस्ट वेस्ट पता नहीं, आजकल तो बहुत ही ज्यादा लोड रहता है बच्चों पे भी। तो हम्म। गर्मी की छुट्टियों में ऐसा प्लान करके कि स्पोर्ट्स पसंद है या एकेडमिक्स में पसंद है, एंड चीजों को हम्म। लोडेड करके कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मन लग रहा है। एंड ऐसा नहीं कि सारा कुछ बच्चा खुद करेगा, मतलब आपको यू हम्म। हैव टू गाइड देम ऑल्सो। पहले जैसे वो बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनाई जाती थी, ऐसा बिल्कुल। प्रेरणादायक, वो सब कुछ थोड़ा सा वो करके एंड देन थोड़ा सा गाइड भी करना होता है। सब कुछ बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा। आई थिंक इट्स नहीं नहीं, सर्टनली डॉक्टर, इनफैक्ट मुझे लगता है पेरेंट्स का रोल इंडिया में खासकर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एजुकेशन। बट आई बिलीव नाउ द प्रोफेशनल्स हैव टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी फील्ड में नए बच्चों को एक्सपोजर कराएं। एंड आई थिंक एट शाला, आई थिंक इज इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एट शाला ऑल्सो। तो हाँ, डॉक्टर, दैट दैट इज गुड इंशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल कि आप लोग, मैं देख रहा था, आई वाज गोइंग थ्रू द पेज आल्सो, कि काफी सारा इंफॉर्मेशन है उन बच्चों को, ताकि दे कैन मेक गाइडेड डिसीजंस। एंड आई फील जैसा ना कि प्रोफेशनल्स शुड कम फॉरवर्ड कि हाँ भाई, आप बच्चों को एक हफ्ते के लिए आप रखिए, या 4 घंटे रखिए, हम इनको बताएंगे, हम प्यार से सिखाएंगे जो कुछ पूछना चाहते हैं, बिकॉज दे नीड दैट सेफ एनवायरनमेंट ऑल्सो विदाउट बीइंग रिडिक्यूल्ड, कि कोई मजाक ना बना दे। दैट थिंग, that is what we that is our responsibility. So similarly, like I have started मेरे चैनल पे चीजों को थोड़ा बताना, थोड़ा समझाना। In fact, I've started waking up early कि 10th 11th 12th के बच्चे उठे and then you can ask me questions सामने से। So those are the few baby steps that I thought मेरे नहीं हाथ सर, में तो जितने हम सर्टनली लोग क्या अपना करना चाहिए। is going to grow and we are all together in this mission. And sir, acha, one more thing from you. You are a very strong advocate for fitness among doctors. Okay. हम्म। So why do you see it as a non-negotiative quality? I mean, why fitness is so important? I mean, usually जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते थे तो बहुत मोटे होते थे। तो हम्म। but now doctors from your generation are absolutely fit and fine. I mean, you can compete bodybuilders on the stage these days. So, हाँ, तो so why? I सर mean, why बहुत सी, ये एक्चुअली सर आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, मतलब थोड़ा सा ऐसा फैमिली हेरिटेज था रेसलिंग का, बॉडी बिल्डिंग का, घर से है। मेरे Hmm. दोनों बोथ साइड्स ऑफ माय फैमिली वर इनटू कॉम्पिटिटिव फिजिकल फिटनेस। तो ये चीज तो लाइक मेरे बचपन से ही डाली गई थी। आई वॉज नॉट अलाउड टू स्टे इन साइड माई हाउस फॉर 3 to 4 hours इन द इवनिंग, भगा दिया जाता था सबको, मुझे, मेरी बहनों को, सिस्टर्स को भी। एंड वी वर सपोज टू प्ले देन कराटे, ताइक्वांडो, एक्स्ट्रा फिजिकल Hmm. फिटनेस जोर दिया जाता था। बट व्हाट आई फील इज, वन थिंग इज कि वन शुड प्रैक्टिस व्हाट वन इज प्रीचिंग, एंड देन अभी तो कैंसर वगैरह का नॉलेज काफी हो गया है। तो उसमें ये भी समझ में आता है कि दैट फिजिकल फिटनेस इज एक्चुअली वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, एंड ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर, फैट इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, एंड एंडोमेट्रियम वगैरह कई सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें इट इज सीधे सीधे स्ट्रेट पे मतलब एविडेंस है डायरेक्ट रिलेशन का भी। एंड सर फिटनेस इज समथिंग आई थिंक
स्वामी विवेकानंद जी को कोट करूंगा मैं, ही सेड कि व्हेन योर बॉडी टायर्स योर माइंड रिलैक्सेस। तो आई फील जो बच्चे जो स्पेशली जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि अब पढ़ लिया, अब बीच में भी क्या करें, तो टपरी पे चले जाएंगे, अब वहां पे वही सुट्टाई हम्म, या ये रहते हैं। तो बिल्कुल आई फील वो छोड़ के अगर आपके मन में धीरे धीरे व्हेन यू डेवलप दिस, कि आपकी फिटनेस ना आपका जुनून बन जाए, मतलब आदत बन जाए, तो आप वो छोड़ के आप 10 पुशअप मारोगे, 10 क्रंच मारोगे, 10 स्क्वाट्स मारोगे, यू विल कीप लुकिंग, आपका दिमाग में ये चीज रहेगी। तो आई फील समवेयर अगेन इट रीइंफोर्सेस डिसिप्लिन अ लॉट। आप अगर सवेरे उठ के वर्जिश करते हैं हर दिन, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कि हाँ, अगर मुझे एक गोल करना है खत्म, तो दैट इज लाइक वन थिंग डन, दैट स्लो। सो आई फील इट इज डेफिनेटली 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 मतलब नॉन नेगोशिएबल। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो आफ्टर 30 आई ऑफन टेल ऑल पीपल कि ये आपका एक सेकंड जॉब होना चाहिए, हेल्थ। मतलब योर फर्स्ट हम्म। जॉब ओके, यू आर डूइंग इट, बट योर सेकंड जॉब शुड बी योर हेल्थ। तो दोनों को हम लोग साथ तो में बोल लेके देते हैं कि 20 मिनट कम सो जाओ, जो पेशेंट बोलते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, 20 मिनट कम सो लो लेकिन चल लो। सर चलो बिल्कुल। डायबिटीज वगैरह में आपका ग्लूकोज लेवल्स वगैरह जो है ना, 30-30 पॉइंट्स तक कम हो जाते हैं, बिकॉज मसल वगैरह में हम्म, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स वगैरह आ जाते हैं, GLUT2 बोलते हैं उनको हम लोग। एंड देन दे हेल्प रेगुलेट योर दिस ऑल्सो, बिल्कुल। इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड वो सब। तो बहुत मतलब इट्स इट आई 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 कैन नेवर ओवर एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। एंड एंड डॉक्टर। ऑफ कोर्स एक और चीज, सॉरी मैं आपको रोक रहा हाँ हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल। एक और चीज है कि सर आज के समय में जो ये मतलब वायलेंस वगैरह भी फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं ना, तो ऑफ कोर्स देखिए, पुलिस सिक्योरिटी सब कुछ ठीक है, बट उनके आने में भी टाइम लगता है, एंड एट द एंड ऑफ द यस। डे मुझे लगता है कि अपने जूनियर्स को, अपने आप को, अपने परिवार को बचाने की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के खुद की है। मैं मेल फीमेल सबके लिए बोल रहा हूँ, तो एक बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ तो रहना ही चाहिए कि जब तक कुछ और आ रहा है तब यस सर, यस तक बिल्कुल। नहीं, और स्ट्रांग डॉक्टर होगा तो सामने वाला भी 10 बार सोचता है। तो हम्म। मतलब आई मीन एक्चुअली सर्टनली सर ना, वो पूरा अलग व्यक्ति वो है। वल्नरेबल लगेगा तो आदमी डोमिनेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, इनफैक्ट दिस वुड बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन इन अ कंट्री वेयर डॉक्टर्स आर ट्रीटेड नेक्स्ट टू गॉड, आई मीन वी आर सीइंग मेनी एक्ट्स ऑफ वायलेंस, अब्यूज, abusive culture among people towards doctors. Even during covid हम लोगों ने देखा कि काफी डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हुए, जब डॉक्टर सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन था। तो what is your take in this regard? I mean, where exactly the problem lies? I mean, is it with the institutions, with communication, or what else? I mean, the emotional intelligence of the patients and relatives. Where exactly the problem is? सर एक्चुअली इट इज अ मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम। मैं अलग अलग लेवल्स पे बताता हूँ। आपको भी याद होगा, कोविड के 2 वेव्स आए थे, ठीक है। Yes. पहली वेव में कोई वायलेंस नहीं हुआ, ठीक Hmm. है। दूसरी वेव में वायलेंस ही वायलेंस होता। पहली वेव में वायलेंस नहीं हुआ था, सब लोग शांति से घर पे रुके थे, नहीं, डॉक्टरों ने बिल्कुल अपना काम certainly. किया। जाने भी Hmm. गई थी, परिवारों की जाने गई थी, आई नो दैट। इनफैक्ट वी वर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग समवन वेरी डियर, बट ठीक है। बट व्हाट हैपेंड नाउ इन सेकेंड वेव में, many other hospitals other than the government hospitals were also allowed to admit patients. First wave में उतना ज्यादा allowed नहीं था, but maybe शायद ये factually wrong, but what I remember very clearly because I was in that field, plus first wave उतना serious भी नहीं था, ये शायद था थोड़ा सा मेरा मेमोरी इज लाइक, हाँ सेकंड वेव वाज वर्स, आई एम नॉट सेइंग फर्स्ट वेव सीरियस Worst नहीं way. था, Yes. सेकंड मच वर्स, देयर वाज लॉट मोर वायलेंस। एनीवे, कमिंग टू योर मेन क्वेश्चन कि व्हाई डज वायलेंस हैपन, तीन चीजें हैं सर। एक है कि इन जनरल सोसाइटी का ना पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। आपको 10 मिनट में कोई भी सामान आ जाता है आपके पास, आप फोन करके ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ भी चाहिए आपको, आपको गारंटी मिल जाती है 30 मिनट 10 मिनट। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस रहता है कि ऐसा कैसे नहीं हो रहा है, जबकि यथार्थ मतलब जो है ट्रूथ, हम लोग वी आर 100 करोड़, 1 बिलियन का पॉपुलेशन है हमारा। तो 1.4 in लोग fact, sir. सोचते ही नहीं है, Bill- कभी कभी गए ही नहीं है हॉस्पिटल, सोचते ही हाँ, नहीं है कभी पब्लिक। फोन पे ही बिजली बिल जमा हो जा रहा है, हम लोगों ने बिल- जमा कर रखा है अपने टाइम पे। वो लाइन लग के घर से बिजली की yes, बिल की yes. लाइन, मतलब पूरा दिन चला हम्म, जाता था सर, पूरा दिन चला जाता था। It आप was a task, sir. रिजर्वेशन It का was a task.
सवेरे से दौड़े पड़े हैं कि लाइन लग जाएंगे, तो तत्काल के हम्म, लिए सुबह से लग रहे हैं बहुत, मतलब। तो बिल्कुल। आपको पता है क्या, अब आज सब कुछ तो फोन पे 1 सेकंड में हो जा रहा है, फिर कोई क्यों रुके 10 मिनट? 10 मिनट और यहाँ के। पर तो किसी के परिवारजन, मतलब हम्म। दुख में भी हैं, सुख में भी हैं। ये एक पार्ट है, पूरा नहीं है। दूसरा पार्ट ये होता है कि ऑब्वियसली, मतलब देयर इज अ स्कार्सिटी, ज्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह भी चाहिए रहते हैं कि चीजें आसानी से हों। देन द थर्ड पार्ट इज व्हाट आई फील, डॉक्टर साइड हम लोगों की तरफ से होता है कि जो बच्चे जूनियर्स जो फर्स्ट ईयर ज्वाइन होते हैं रेसिडेंसी में, जो एक्चुअली इमरजेंसी संभालते हैं, जिनको कि हॉस्पिटल की नब्ज कहा जाता है, अगेन वही जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके लिए वो बच्चे 6 6 महीने 8 8 महीने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कमरों में बंद होकर के। तो हम्म। उनका रियलिटी से बहुत वो भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उन बच्चों ने इंटर्नशिप में करी रही होगी मेहनत, बट आप 6 महीने छोड़ दे रहे हैं। देन इट इज नॉट जस्ट योर स्किल कि आप कितनी जल्दी आईवी लाइन लगा रहे हैं, आपने रिलेटिव से बात कैसे की, आप क्या आपको पता है कि क्या वायलेंस होने वाला है वगैरह, मतलब क्या। इनफैक्ट आई रेज दिस इशू ऑन माय पेज आल्सो, आई ट्राइड टू इमरजेंसी कैसे हैंडल करो, देन कॉन्फ्लिक्ट कैसे कम करो। तो एक तरफ पेशेंट का भी है, एक ये भी रहता है सर कि पेशेंट के रिलेटिव्स जो रहते हैं उनको पता रहता है कि ये चीजें होने वाली थी, मतलब 10 साल से डायबिटीज है बट ध्यान नहीं देंगे, हम्म। रसगुल्ला गुलाब जामुन का बर्गर बना करके खिलाते रहेंगे कि जो होगा देखा जाएगा। तो जब हम्म। होता है तब फिर नहीं देखना चाहते हो, अरे ऐसे कैसे पैर सड़ गया, ये हो गया, अभी तक तो ठीक थे, कल तक तो ठीक थे। तो ऑब्वियसली बीमारी के हम्म। पहले तक मरीज ठीक ही रहता है। एंड देन दे वांट समवन टू पुट देयर ब्लेम ऑन कि आप अ, अभी तक तो ठीक थे, आपके अंडर में क्या है। ये हुआ आई एक थिंक पार्ट। स्केप दूसरा पार्ट वोटिंग होता है वो जो बच्चा एक रहता है, डॉक्टर सामने है, वो बता नहीं पाता। इनफैक्ट जो बच्चे नए नए रहते हैं वो हर चीज अच्छा बताना चाहते हैं, तो बोल देते हैं कि सर सब अच्छा। इनफैक्ट मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर था, मैं सेकेंड ईयर था, मैं अंदर रूम में था, एक पेशेंट आया लोकल से, ट्रेन से उसको हेड ऑन कोलिजन हुआ था और वो फेंका गया था। ऑब्वियसली उसका सर खुला था इतना, एंड स्कल भी फ्रैक्चर्ड था, मतलब वी कुड सी उसमें से ढंग से ये, तो ब्रेन की कवरिंग वगैरह सब दिख रही थी। ऑब्वियसली कोमा में था, एंड ऑब्वियसली मतलब वो नहीं बच सकता था उस समय तक अनलेस अर्जेंटली ऑपरेट किया ना जाए तो। अब इसमें वो बेचारा जो मेरा फर्स्ट ईयर था जा करके बोल के आ गया कि नहीं नहीं ठीक ही है, आ, हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट प्रोग्नोसिस, एक्सप्लेनिंग प्रोग्नोसिस टू द पेशेंट। इमरजेंसी इज नॉट अ प्लेस फॉर इमोशंस। आपके एडमिटेड पेशेंट के लिए आप रिलेटिव्स को थोड़ा, जब उनका आपके अंदर ट्रस्ट बन गया है तब भले ही आप उनको पॉजिटिवली थोड़ा सा बताओ, बट इमरजेंसी जहां पर वो आपको कुछ जानते नहीं है एंड आप बता रहे हो नहीं हल्की सी चोट है, अरे भैया वहां पर मतलब पूरा सर खुला हुआ है उसका, हल्की सी चोट है, देन ऑब्वियसली अब जब वो डिटेरियरेट करेगा, देन पेशेंट रिलेटिव बोलेंगे ना कि सर आपने 10 मिनट पहले बिल्कुल बोला था ठीक, बिल्कुल। तो क्या हो, आपने क्या नहीं किया। तो हम्म। वायलेंस में बहुत सारी चीजें मिलजुल करके आती हैं, बट आजकल ज्यादा हो चुका है बिकॉज लोड भी बहुत बढ़ गया है, पॉपुलेशन भी हम्म। बढ़ गई है। तो आई फील नहीं, कि I certainly do understand. I think communication, I think it's a big thing. And in fact, I also advocate for this कि हॉस्पिटल्स के अंदर एक सेपरेट कम्युनिकेशन का इसमें होना चाहिए, कि एक काउंसलर्स होने चाहिए। आई थिंक इट्स बिकॉज डॉक्टर्स के पास भी टाइम नहीं होता इतना कि वो मरीज को बिठाकर अच्छे से समझा सकें कि तुम्हें हुआ क्या है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज। तो आई बिलीव द काउंसलर्स विल बी डू इमरजेंसी, एबल टू डू दैट। इमरजेंसी में तो बिल्कुल ही टाइम, मतलब हमारे यहाँ तो 102 नंबर की एम्बुलेंसेज की तो स्ट्रेचर्स की लाइन लग जाती थी बाहर तक। अब उसमें आप हम्म। कितना ही बता पाएंगे, बट आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन की एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है वो बता हम्म। देना चाहिए, क्या करने वाले हैं, अगर हम्म। ठीक हुआ तो क्या होगा, ठीक नहीं हुआ तो हमारा अगला प्लान क्या है, अगला प्लान क्या है, ये बोल करके रिलेटिव्स को एकदम, मतलब। बट यस, कई तैयार बार कर सर सकते। रिलेटिव समझना भी नहीं चाहते। हम्म। उनका रहता है कि कुछ भी करके ये हमें बचाना है, ये वो है, तो अब समझना नहीं चाहते। इट्स ऑल लाइक क्रॉनिक केसेस में तो इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ लॉट लॉन्ग, 10 20 साल की गलतियां एक हम्म। साथ होकर के आती हैं, तो एक बार में तो फिर नहीं ठीक हो पाता। बट एनीवे वील आई आई होप धीरे धीरे जब व्हेन वी स्टार्ट टेलिंग आवर वर्क लोगों को, इसी वजह से सर एक्चुअली क्या है ना, पब्लिक सर्विसेज में हर
जगह पे लोगों की आदत पड़ गई है चिल्लम चिल्ला मचाना, जो कि जी। मतलब ठीक है, बट कई बार लोग पुलिस को भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बट हमने देखा है यस। हमारे सामने कि आप एक बार 100 डायल कर दीजिए, जो जितने नशे वशे में जो रोड पर पड़े रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, फिर वो बेचारा वो पुलिस वाले उठा करके उठा हमारे कर ले। पास ला करके, फिर हम वो मिल करके उनका जितना बन पड़ता है ट्रीटमेंट करवा करके, इट्स वेरी इजी, आप आई अपने थिंक इट्स मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम सर, निश्चिंत कि कमरे में इसको बैठ मतलब, करके। but I believe ki if like the initiative like you are taking, so people will become more aware about these things and they हम्म, will be more empathetic towards doctors also. जो empathy का एक जो basic emotion है ना, वो मुझे लगता है कि एक बहुत मिस हो गया है। और जो हमारे interns doctors भी हैं, तो जब professionals आगे आएंगे, if they can teach them certain soft skills जिनका टाइम उनको कोर्सेज के दौरान नहीं मिल पाता, तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम would be resolved in the future. But we need a श्योर श्योर, platform for that जहाँ पे, आप लोग को जब वीक का स्टार्ट हो देन यू शुड इंक्लूड दीज आल्सो, दीज yes, क्लासेस yes, please, आल्सो। certainly, sir, we are into these things. In fact, these are the thought. This was a thought process only when we started all these things. So certainly we'll talk about them later on. And acha, one more thing, sir. We talked about physical things. Okay, but there is a lot of mental pressure also on the doctors. Like you said, ki there is no time and everything is there. So how the doctors, how the young doctors, especially, how they can handle all these things physically, तो चलिए exercise कर लिया, mentally how this thing is possible. सर अब इसमें मैं पर्सनल व्यूज ही दे पाऊंगा। आई फील कि हर डॉक्टर को, हर मेडिकल स्टूडेंट को, दे शुड बी कनेक्टेड टू द ग्रेटर पावर इन विच एवर वे दे बिलीव इन। आप जो हम्म। भी हैं, भगवान में, अल्लाह में, गुरु ग्रंथ साहिब में, जिधर भी विश्वास है ना, देयर शुड बी समथिंग you can fall back to in terms of despair and in adversities। ये जो मूवमेंट चलता है, सर एक्चुअली अभी रिसेंटली आई मेड अ वीडियो, उसमें भी बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐसे कैसे ऑन्को सर्जन हैं एंड देन टेम्पल जा रहे हैं। भैया, हम फील करते हैं उस एनर्जी को लगभग हर दिन अपने काम के समय में, वरना अगर जी। सब कुछ हमारे हाथ में रहता तो एक भी मरीज हमारा मरता ही नहीं। लगता है नहीं, बट बिल्कुल। एक कैंसर सर्जन को बोल दिया हमने बहुत अच्छी सर्जरी करी, रात को एक थ्रोम्बस उड़ के लंग में चला जाएगा और पेशेंट डिटेरियरेट कर जाता है। तो हम्म। वी एंड कई बार हमें लगता है कि ये पेशेंट की हालत बहुत खराब है और बिल्कुल ठीक हो करके चला जाता है। देयर आर सो मेनी अनएक्सप्लेन्ड केसेस। तो चूंकि वी एक्सपीरियंस इट, आई डोंट नो, जब देखिए सर, आइंस्टाइन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये बोला था कि आई नेवर वर्क टू टू डिसरिगार्ड गॉड, आई वर्क टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड, कि भगवान ने माइंड। कैसे चीजें बनाई। तो मेंटल स्ट्रेंथ सर, एक स्ट्रांग फैमिली बेस, एक लविंग पेरेंट, लॉयल पार्टनर जो हेल्पफुल रहता हो, एंड देन आपकी स्पिरिचुअलिटी, एंड देन उसके बाद आता है आपके सीनियर्स, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, एंड देन वही जो मैंने बोला ना कि थोड़ा पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह अगर बच्चे हैंडल करना शुरू कर चुके होते हैं ना, देन दे डेवलप दैट स्किल। वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत रोना धोना होता है सर फर्स्ट ईयर में, बहुत सब रोते हैं, सबके पेरेंट्स आते ही हैं। आई डोंट रियली नो कि वो धीरे धीरे फिर बन जाता है इंसान, मतलब इट्स लाइक वी बिकम, थोड़ा सा नमनेस भी आ जाती है। Well, sir, एंड certainly, I believe ki, and among students also 11th, 12th में we are seeing new records of suicide cases in education hubs. तो I think ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ज्यादातर लोग IQ के पीछे भाग रहे हैं, मगर EQ और SQ, इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट, जिसकी अभी आपने बात करी, आई थिंक दीज टू आर ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट डायमेंशंस जिनके ऊपर स्टूडेंट्स को वर्क करना चाहिए। एंड आई अगेन बिलीव कि यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क इन दिस रिगार्ड। और आप जो सीनियर जिन्होंने लाइफ को अच्छे से देखा है, तो इफ यू पीपल विल गाइड देम, तो सर्टनली इट विल ब्रिंग सम गुड थिंग्स। तो डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। नाउ लेट्स कम टू योर स्पेशलाइजेशन। आजकल हम बहुत सारे देख रहे हैं कि पीपल क्लेम दैट दे हैव क्योर्ड देयर कैंसर फ्रॉम थ्रू दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि नींबू पानी पी लो, नीम लीव्स हैव इट। रिसेंटली वन cricketer turned politician also claimed about this thing, when his wife got cancer.
So how much truth is there? I mean, where the line can be clearly drawn in this regard? I mean, is it true? I mean, does what you eat, I mean, does it impact the probability of you getting cancer, and can it be cured also? ओके, तो सर आपने पाजी की बात करी थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए थे, Hmm. बट उन्होंने ये बात बताई नहीं थी कि उनकी पत्नी ने पूरे कीमोथेरेपी साइकिल्स भी कंप्लीट किए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ नीम हल्दी कराई एंड देन बाद में जब काफी हंगामा हुआ, डॉक्टर्स बॉडीज ने बोला, देन ही अपोलोजाइज पब्लिकली। सर कई बार Hmm. होता है, ये कॉमन है कि डॉक्टरों को उनका जो ड्यू रिगार्ड है वो नहीं मिल पाता। आप हर Hmm. बार देखेंगे, आप कई बार देखेंगे, कई सारे जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, जो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, उनको 6 गोली लगी पॉडकास्ट में एंड देन वाह वाही होती है कि उसके बाद भी बच गए। कभी भी किसी डॉक्टर का नाम नहीं आता कि वो गोलियां Hmm. निकाली किसने। कि ऐसा तो नहीं Hmm. है कि वो गोली के साथ ही जिंदा घूम रहे हैं, किसी डॉक्टर ने सब कुछ छोड़ छाड़ के रात भर लग करके ऑपरेट किया होगा। डॉक्टर क्या, वो नर्स, वो बहुत सारे लोग रहते हैं, बट कभी भी कभी भी आपको किसी भी डॉक्टर का नाम नहीं आता है। कोई नहीं बोलता हुआ दिखाई देगा कि हाँ भाई, इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया, उन्होंने सब कुछ किया। वो बट ठीक है, ये पार्ट ऑफ ये मतलब सोच है। उतना ज्यादा हम लोग बोलते भी नहीं है कि नहीं हमें रिगार्ड दो वगैरह, बट जब चीजें, जब व्हेन द पेंडुलम स्विंग्स टू द अदर साइड कि अब आपने हाथ ही उठाना शुरू कर दिया है, देन वी हैव टू कम आउट एंड टेल, कि अब ह्यूमिलिटी छोड़ के कि भैया देखो हम भी ऐसे ऐसे करते हैं आप लोगों के लिए। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट दिस, कई लोग आए कि नहीं पहले भी तो होता था, तो इतना तो नहीं बोलते थे लोग। तो भैया पहले तो कोई हाथ भी नहीं उठाता था, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आपको बताना ही पड़ रहा है क्योंकि आपके फीड में वही सारी चीजें आती हैं ना आपको, तो ठीक है, मतलब ह्यूमन नेचर है, मैं नहीं बता रहा, बट देन समथिंग हैज टू बी डन, हैज टू बी डन, तो वो बताना पड़ता ही है। एनीवे, कमिंग टू योर क्वेश्चन, सॉरी आई डाइग्रेस्ड अ बिट। Hmm. सर जो उन्होंने, तो चूंकि देखिए उन्होंने बताया नहीं था ना कि कीमोथेरेपी की सारी वो Hmm. था, उसके अलावा उन्होंने नीम हल्दी करा, ठीक है। तो मैं चूंकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग एलोपैथी में, कि हम किसी भी चीज को जब तक हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का एविडेंस नहीं है, हम लोग उसको बहुत ही स्ट्रांगली उस एविडेंस को नहीं मतलब कंसिडर करते हैं। कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या हो गई कि हमने 100 जने लिए जिनको की बीमारी थी, 100 जने थे जिनको बीमारी नहीं थी, दोनों में ड्रग्स दे करके देखे देखे कि भैया, सॉरी, 100 जने जिनको बीमारी थी उनको 50-50 में बांटा, आधों को एक दवाई दी, बिल्कुल। आधों को नहीं, एंड देन कुछ और कंट्रोल दवाई कर दी रहे एंड वी हैं। सॉ क्या होता है। तो ये जो नीम इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह को, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये क्योर इनमें प्रूव नहीं हुआ। Hmm. कुछ कुछ इसमें है जिसमें कि एनिमल मॉडल्स में थोड़ा बहुत ऐसा ट्यूमर का बढ़ने का ग्रोथ थोड़ा कम हुआ होगा। मैं रिग्रेशन की बात नहीं कर रहा कि ट्यूमर गायब हो गया, मैं कह रहा हूँ कि Hmm. रेट ऑफ इंक्रीजिंग। थोड़ी बहुत थ्योरीज भी हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह जो है उससे आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ता है। देन जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ऑफ कैंसर, कैंसर थ्राइव्स ओनली ऑन ग्लूकोज, नॉट ऑन फैट और अदर थिंग। तो जब Hmm. आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आप इन जनरल यू आर मेकिंग योर बॉडी यूज टू यूजिंग मोर फैट रादर देन ग्लूकोज, तो जो कैंसर है वो थोड़ा सा फैमिश्ड होता है। तो Hmm. अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि अब हार्ड 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 एविडेंस नहीं है तो एकदम सिरे से ही नकार देना चाहिए। Hmm. न्यूटन ने जब तक ग्रेविटी की थ्योरी नहीं दी थी उसके पहले भी सेब जमीन पर ही गिरते थे। तो जस्ट बिल्कुल। बिकॉज डोंट हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग डजंट मीन इज टोटली रॉन्ग, बट हाँ, सिर्फ सोच के आधार पर कीमो बंद कर देना, हमारे पास ना आना, Hmm. एंड देन लास्ट में फिर वही स्टेज 4 हो करके, हमें भी बहुत दुख होता है सर। एंड आई फील कि Yes, sir. इसमें इसकी मैं बहुत ज्यादा गलती नहीं मानता, क्योंकि कोई भी इंसान घबराया हुआ रहता है। किसी को भी कीमो सर्जरी से तो खैर बहुत ही ज्यादा डर लगता है, और ऐसे में कुछ Hmm. लोग जो है अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी लोग जो है वो पहुंच जाते हैं एंड वो बोलना Hmm. शुरू कर दे कि हमारे चाचा जी ने तो ये खा लिया था, ये चाट लिया Hmm. था, तो वो ठीक है। वो बेचारे भी वही करने लग जाते हैं, एंड देन जब चीजें बढ़ती ही हैं, कई बार क्या होता है वो कैंसर होता ही नहीं है, तो वो ठीक हो Hmm. जाता है, तो ठीक हो गया, वो था ही नहीं, कुछ और Hmm. सूजन थी, Hmm. सोरेसिस का दाग होगा या कुछ और रहा होगा, वो ठीक हो जाता है, तो लोग उसको मानने लगते हैं। बट एंड सर ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, नीम एंड ये सारी चीजें हमारी किताबों में नहीं है, बिल्कुल है।
मतलब वेजिटेबल्स खाना, डेली एक्टिविटी एंड उससे रिलेटेड ये है हमारे में। इनफैक्ट प्रॉपर हम्म, रैंडमाइज ट्रायल है, चैलेंज ट्रायल है, एंड कई सारे अलग हैं। फाइबर, मतलब फाइबर इंटेक से आपके कोलोन कैंसर में क्या फर्क पड़ रहा है, डेली हम्म, एक्टिविटी से कौन से कैंसर में, ये हम पढ़ते हैं। बट कुछ लोग को फिर ये सुनना पसंद नहीं आएगा कि डॉक्टर को ये कहा, हमको तो सिर्फ दवाई देनी है। बट ऐसा नहीं है। हम्म, हमारे ओपीडी, हमारे जो मरीज जो ठीक होकर जाते हैं, बिल्कुल हम उनको ये सारी एडवाइसेस वगैरह भी देते हैं। हम्म, जस्ट मीडिया पॉपुलराइज नहीं होता। तो हाँ सर, आपका सवाल क्या था कि नथिंग एज अ ये एविडेंस बेस्ड तो नहीं है। ह्यूमन ट्रायल्स में तो बिल्कुल ही नहीं है इन सारी चीजें में। हम्म, कुछ हम्म, चीजें एनिमल मॉडल्स में शो हुई हैं, कुछ कुछ चीजों की थ्योरी हमें भी है। बट मैं ये बोलता हूँ कि आपको नीम खाना है, आप नीम खाओ, आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है, आप करो। लेकिन आप कीमो प्लीज, पूरा आपका ट्रीटमेंट जो हमारे तरफ से है ना, वो प्लीज कंप्लीट करिए। ये दैट्स अ एग्जैक्टली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई ऑलवेज वांट टू गिव एवरीवन। बिल्कुल, आई थिंक ये प्लेसिबो इफेक्ट भी है डॉक्टर, कि मतलब उनको लगता है हम अच्छे हो जाएंगे तो शायद इस वजह से अच्छे हो जाते हैं। तो हाँ नहीं, सर उसमें लेकिन वो वही मैं बता रहा हूँ, वो कंडीशंस में कैंसर होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। कैंसर वगैरह मतलब खुद से ठीक हो जाए, पॉसिबल नहीं, नहीं, नहीं सर्टनली सर। सर्टनली। मतलब रहता होता है, देखिए सर, मैं मतलब मैंने कितने में हजारों, 10 हजारों, लाखों पेशेंट्स देख रखे हैं। हम्म। कई हमें भी पता होता ना, अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल हम्म, करके जाते हैं। और मतलब रिसर्चेज स्लो इन डाउन सारी हो चीजों में सकता हमें है भी पता डिजीज। लगे। हाँ, मे बी इट कैन स्लो डाउन इन इट्स प्रोग्रेशन, बट वो हाँ, रिवर्स हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योर बोल देना, क्योर की एकदम क्योर हो, देखिए सर, क्योर क्या होता है, ये कोई बाहर से नहीं आता कैंसर। आपके हम्म, शरीर का ही पार्ट है, आपके शरीर में ही जेनेटिक डिफेक्ट है, वहां से उग रहा है। ये नहीं कि कोई बाहर से कुछ आया एंड देन वहां से वो हो रहा है। स्टार्ट आपके शरीर के अंदर के जेनेटिक डिफेक्ट से हो रहा है। इट इज पार्ट ऑफ यू। तो थोड़ा सा समझ रहे लोगों को अर्ली स्टेज में आ जाएं। अंदर के कैंसर्स में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, बिकॉज वो डिटेक्ट होने में भी टाइम लगता है। बट जब भी लगे लोगों को तो बिल्कुल आ जाना चाहिए हमारे पास। उसके अलावा बिल्कुल नीम वीम खाते रहिए, हम कभी मना नहीं करते हैं। नहीं, वैसे भी कुछ अच्छा खाओगे तो कुछ अच्छा ही आएगा असर बॉडी के अंदर। बट ये है कि इट इज नॉट नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर क्योर। एक और चीज है सर क्योंकि कि आप कभी भी ना जेनेटिक्स को हरा नहीं पाएंगे इन्वायरमेंट से। मतलब हम्म, अगर आपके माँ बाप को डायबिटीज था, तो भले आप हम्म, पैदा होते ही एक्सरसाइज करते रहिए, समय आने पर आपको डायबिटीज होगा। होगा उसके बिल्कुल। लिए आप पहले से परहेज रखिए, आप उसको डिले कर सकते हैं, एंड जब हो हम्म, तब आप बहुत ही मिनिमल सपोर्ट के साथ आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। enjoy किया जा नकार सकता देना कि होगा ही नहीं, एंड देन तब डिटेक्ट होना जब किडनी आंखें फेल होने की कगार पे हो जाएं, देन फिर वही होगा वायलेंस। है, ऐसे वायलेंस। कैसे हो गया, हम तो ठीक ही थे। Well said, doctor. Now, again, doctor, let's come to the social part. Like now, you are from northern India and you are working in southern India. तो आजकल हम देख रहे हैं कि ऑल दीज लैंग्वेज डिबेट्स आर हैपनिंग, कि हिंदी में बोलो, इंग्लिश, आई मीन मराठा बोलते हैं कि नहीं, मराठा बोलना पड़ेगा। सो व्हाट इज योर टेक एंड व्हाट हैव बीन योर एक्सपीरियंस ऑन दिस डिबेट? तर देखिए, पर्सनली मैं 8 भाषाएं बोल पाता हूँ। लाईक हम्म, मी मराठी पण बोलू शकत आहे, मला येत आहे, छान मराठी में बोलू शकता है। मी होता 4 वर्ष मुंबई में था, फिर पुणे में था, मेरी एमएस वहां से हुई है। ज्ञान ओके। कन्नड़दली मेरा एमबीबीएस कर्नाटका से है। ये पे ज्ञान मलयालम तेरे सारे क्यों पढ़ता हूँ, मैं मलयालम भी बोल सकता हूँ। उसके अलावा भोजपुरी, हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश मेरे बर्थ रिलेटेड ये सारी भाषाएं जो मुझे आते हैं। फ्रेंच मेरी थर्ड लैंग्वेज थी। तो इस सारा कुछ सीखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि एज डॉक्टर्स, एज क्लिनिशियंस, आपको लोकल लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। एंड आनी सर ये चाहिए। मेरी अकेले की नहीं, आप हिंदुस्तान में सारे डॉक्टर्स जो हैं 3 डिग्री करते हैं कम से कम, या दो दो डिग्री तो करते हम्म, हैं, या एक भी करेंगे तो अपने स्टेट से बाहर तो निकलते ही। तो सारे बिल्कुल। डॉक्टर्स को 3 4 भाषाएं आती ही हैं, मतलब। हम्म, एंड सर ये क्या है ना कि अगर पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ में है तो उस समय उसके मुंह से अंग्रेजी नहीं निकलेगी। अगर वो नहीं हिंदी नहीं। बेल्ट का नहीं है, हिंदी भी नहीं निकलेगी। एक्चुअली हम्म। पहली बार ये मेरा एक्सपीरियंस था, एमबीबीएस करने हम लोग कर्नाटका पहुंचे, तो वहां पर हमें भी एक मरीज आया। देन उसको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, हमें दिक्कत हो रही थी। तो हमने बोला, हमारे जो कन्नडिगा दोस्त थे, हम्म, उनको बोला कि यार दम ही नहीं आ रही इसको तो। और वो हम्म, गांव खेड़े का था।
बिल्कुल। तो उसने बोला, मेरी तरफ से स्ट्रेट बोला कि क्यों आएगी उसे। बोला कि उसकी जिंदगी में कभी यूज ही नहीं आया उसके जी जी। लैंग्वेज को चूज करके, देन व्हाई शुड ही नो। तो बात बिल्कुल। बहुत सही भी थी कि भाई हम्म। जब किसी को यूज में कि तुम्हें कन्नड़ा क्यों नहीं आती, मैंने कहा क्योंकि कभी बोला ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ा, तो वही उसके साथ भी। अब आप आए हैं कुछ सीखने, तो हम्म। थोड़ा सा के अंदर पर्सनली मैंने देखा है कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो सामने वाला भी हेल्प करता है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इम्पोज करेंगे किसी के वहां जा करके कि तुम ये बोलो ही बोलो, मतलब हम्म। मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, ये एक नहीं, तरफ का मैं सर्टनली पार्ट नहीं ले सर्टनली रहा। सर्टनली नहीं। वही बोल रहा था कि इफ आई हैव गॉन टू अ स्टेट टू लर्न समथिंग एंड देन हम्म। वांटिंग देम टू acclimatize to what I want is also wrong. हम्म। For them to ask me to acclimatize completely is also a bit wrong, because हमारा देश है बहुत ही मतलब ऐसा विभिन्न भांति भांति हम्म। इन चीजों का बना हुआ है। तो बट आई फील कि दोनों ही तरफ से कभी कभी गलती हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बाहर से आए वो गलत है, मैं नहीं कर रहा हूँ जो रह रहे वो भी गलत है, कहीं ना कहीं बिल्कुल। ईगो आता है। तो एक जना बोलता है कि तुम यही बोलो, दूसरा बोलता है ये नहीं आता तो ये कर देंगे, तो वहां पे क्लैश हो जाती है। बिकॉज आई पर्सनली हैव नॉट फेस्ड अ प्रॉब्लम लाइक दैट येट, जबकि मैं इक्वल पार्ट्स ऑफ माय लाइफ आई हैव लिव्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, सात आठ हम्म। अलग अलग राज्यों में रहा हूँ। आई डिडंट फेस, तो कई बार, बट हाँ जिन्होंने फेस किया होगा उनको भी नकार नहीं सकते, होगा उनके साथ भी। बट लैंग्वेज बिल्कुल। वाला डिबेट आई फील कि सर अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो सामने वाला भी खुश हो जाता है, एंड दे विल लर्न, एंड बीच में मिली जुली कुछ खिचड़ी में बात बात करके मामला सॉर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई बिलीव कि कम से कम मेडिकल फील्ड को इस डिबेट से दूरी रखा जाए तो अच्छा है। एंड हाँ वी हाँ आर सर, इनटू मुझे वेरी तो आती सीरियस। है, सारे डॉक्टर्स को, हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर्स को कम से कम चार भाषाएं आती हैं, उसमें से हिंदी और इंग्लिश तो है ही। है। हाँ, तो बिल्कुल। एंड एक एक से दो अलग अलग स्टेट्स की भाषाएं आती है, सबको आती All right, doctor. So now let's get into the rapid fire round. Okay, it will be a short one. I believe ki students they feel really good about these. So tell me. It's a rapid fire. We will keep the questions as well as the answer short. Okay, है। जी सर। tell me, doctor, one habit which every medical student should start today. One habit that they should develop. एवरी मेडिकल स्टूडेंट शुड डेवलप वेकिंग अप अर्ली। Okay. वो बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस जो है मरीजों के ना अर्ली आवर्स में होते हैं, वो 3-4 बजे सवेरे, उसमें कोई जगह Hmm. नहीं रहता, आपका ब्रेन एक्टिव रहना चाहिए, तो थोड़ा सा वो। All right. And one habit that they must quit immediately. वन हैबिट दे मस्ट क्विट इमीडिएटली इज प्रोक्रास्टिनेशन। कल कर लेंगे, Procrastination. बाद में कर लेंगे, वो आदत जो है ना, वो बाद में आपके काम में भी अगर आने लगे ना, तो फिर Mhm. बीमारी वेट नहीं करती। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो ले लो, इंटरवेंशन करना है तो कर दो, उठ के आना है Mhm. तो आ जाओ। वो Mhm. आई थिंक दैट दे शुड। All right, all right. Acha, one biggest myth about MBBS. Anything, any myth? मिथ अबाउट एमबीबीएस कि डॉक्टर्स आर गॉड्स, इज डज दैट, बिकॉज सर देखिए बहुत मतलब मुझे लगता है कि हम लोग शायद आज के टाइम में ज्यादा लोग मानते नहीं, बट कुछ लोग जो लोग कहते रहते हैं, आई फील वी Hmm. आर पीपल चोजन बाय गॉड टू डू हिज वर्क, कि यार हमारे बच्चों का ख्याल रख लो, इस तरीके से ये सोचना बेटर रहता है। बिकॉज उससे क्या होता है कि आपके पास थोड़ा सा, अगर चीजें ठीक ना भी हो तो ना समझ में आता रहता है। तो हम लोग, Hmm. वी आर जस्ट फ्रेंड्स जिन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम डेडिकेट किया हुआ है ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए, बीमारियों को समझने के लिए। ये एटीट्यूड रखने पे हम भी थोड़ा सा ईगो हमारा कम रह सकता है, हम लोग थोड़ा प्यार से बात कर सकते हैं, थोड़ी देर के बाद चिढ़ सकते हैं, वरना Hmm. बहुत जल्दी समझ जाती है। सर्जन्स में तो है, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल। मुझ में भी होगा ही, कि जैसे Hmm. अगर कोई मेडिसिन का डॉक्टर है उससे आप 10-20-30 सवाल पूछ लेंगे ना, वो शांति से Awesome. बताते रहेंगे। सर्जरी सेट में तीसरा सवाल आते आते उसे नाक बहुत सिकुड़ने लगता है हमारा। बट आई थिंक वो काम के चलते है, मतलब वी हैव टू टेक Hmm. मच फास्टर डिसीजन एंड ऑल। बट या
मिथ आपने दैट्स पूछा था ना, दैट्स एक व्हाई सर मिथ। आई बिलीव कि काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक आप एक जूनियर काउंसलर होना चाहिए स्पेशली फॉर दिस रोल। anyways John. So one non medical book that every doctor should read. सर मेरे हिसाब से जब मैंने पढ़ी थी, वही ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने हम्म, पढ़ी थी ये गीता ही पढ़ी थी कोविड के समय बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मेरा एंड पूरा आई बिलीव विश्वास सो उड़ गया दिस था इज दुनिया से अपनी पढ़ाई से। मैंने मेरी मदर को कॉल किया था, शी इज आल्सो गायनिकोलॉजिस्ट, वो डायरेक्टर भी हैं हेल्थ सर्विसेज में। आई कॉल्ड हर एंड शी हैड एडवाइज्ड मी। मैं बोला था कोई बच नहीं पा रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ काम नहीं आ रहा है। And then I read it, I found some purpose. Then I later realized कि I was the in charge of the most critical ICU, जिसमें हर जगह पूरे वहां से जो पेशेंट नहीं ठीक हो तो वही आ रहे थे उस समय। बाद में फिर वगैरह में पोस्टिंग हुई तो लोग बचना शुरू हुए ठीक ठीक। बट आई नीडेड दैट, सो आई फील वही अगेन, जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं खुद से पढ़ना चाहिए रादर देन समवन एक्सप्लेनिंग इट टू यू। यस। खुद से खुद की समझ से पढ़ना चाहिए। नहीं सर, गीता जो भी पढ़ता है उसको उसका अपना अलग ही मतलब निकल कर आता है। दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड इन भागवत गीता। और आपका आपके गॉड के साथ एक पर्सनल रिलेशन है आई बिलीव, तो वो पर्सनल रिलेशन मेंटेन होना भी चाहिए। एंड नहीं, सर्टली सर्टली इनफैक्ट भागवत गीता इज अ गाइडिंग फोर्स इन माय लाइफ आल्सो। तो एक एक ऐसी बुक है जो सब आपके ज्यादातर सवालों का जवाब दे देती है। And it gives you उससे peace. Most importantly, आता it gives you peace. So, doctor, one very interesting observation that I made. He many MBBS students today they are quite active on Instagram and other social media pages. I mean, आजकल doctors मुझे लग रहा है कम बन रहे हैं, influencers ज्यादा बन रहे हैं. So, what is your take? I mean, is it something that they should leave for their later life, or MBBS is the right place to start it? फिर देखिए, ये तो थोड़ा सा मतलब ऐसा पोजीशन में डालने वाली बात हो गई, क्योंकि मैंने भी ऐसा नवंबर में इस इंटेंट से तो नहीं शुरू किया था कि मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर बनूंगा। बट हम्म मैं अपनी तरफ से बताऊं तो एमबीबीएस में मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ ज्ञान था ही नहीं कि मैं दूसरों को दे पाऊं। खुद को इस हम्म नहीं समझ में आ रहा होता है कि अगला एग्जाम कब, क्या करने वाले हैं लाइफ में, क्या होने वाला है, हाउ टू। हम्म आई फील कि उस समय वो समय थोड़ा सा ऐसा आत्म मनन का है। आप चीजें जो हो रही हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, उसके बारे में सोचिए। एंड अगर आप अपने हिसाब से कुछ आपके लिए जो काम कर रहा है ना, वो ट्रूथफुली बिना किसी बटरिंग के बता देना चाहिए। उसमें हम्म अगर फॉलोअर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, बिकॉज सर पर्सनली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं था, अभी भी नहीं है। ये जो कैरोसॉल वगैरह बनाते हैं इंस्टा पे, वो अभी कुछ 2-4 दिन पहले वो मुझे किसी ने सिखाया था। मेरा वाई आई स्टार्टेड दिस वाज बिकॉज मैंने एक दिन ऐसी एक रील डाली थी कि सर्जरी मैंने क्यों ली। एंड देन बहुत सारे बच्चों के सवाल आए। देन मेरा पैटर्न ही वही था कि मैं एक सवाल जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, मैं उसको लगा हम्म, करके उसका जवाब दे देता। बिल्कुल दैट हैज बीन बिल्कुल। माई, जो मुझे पता है। सवाल तो बहुत हम्म आते हैं मुझे दूसरे चीज के भी वगैरह, जो नहीं आ पाता मैं पोलाइटली डिक्लाइन कर देता हूँ कि मुझे नहीं आता तो मैं नहीं बता पाता। एमबीबीएस में आई फील बच्चों को पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जो आपका बेस जो है उसी समय बन रहा होता है। बट हाँ, थोड़ा बहुत एमबीबीएस में टाइम रहता है। आप दो एक रील हफ्ते की, संडे वगैरह है कुछ आपके पास एक्टिव, अब हर दिन 2-3 पोस्ट कर रहे हैं, हर जगह कैमरा लेकर के बना रहे हैं पढ़ाई छोड़ करके, आई फील दैट इज अ बिट टू मच। एंड आई बिलीव काम सर कि पढ़ाई, एमबीबीएस नंबर वगैरह अच्छे आ रहे हैं, आपको टॉपिक समझ में आ रही है तो मे बी ठीक। मैं उतना आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड टू आंसर दिस एट ऑल, ज्यादा मुझे भी नहीं आता। आई बिलीव कि सर एमबीबीएस स्टूडेंट्स आर द रोल मॉडल्स फॉर मेनी अमंग द पीपल, अमंग द स्टूडेंट्स। तो वो जो ओके भी ओके। करें तो देयर शुड बी सर्टेन ऑनेस्टी इन दैट। मतलब दे शुड गो फॉर क्वालिटी रादर देन जस्ट क्वांटिटी की भाई हमें, एज यू सेड आल्सो 100% क्वालिटी। ऑनेस्ट होना चाहिए इस चीज में तो। 100% ऑनेस्ट होनी चाहिए, काम ही ऐसा है। आप काम ही है। इसमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, बड़ा आई फील। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Acha, doctor, one last question. What will be your message for youth today? I mean, the way you see them doing things. So, what will be one message सर that you देखिए, will?
पर्सनली मेरा बहुत विश्वास है जेंजी में। ठीक है, हम्म, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। जैसा वो दोबारा से सोच रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, जैसा वो अपने डिसीजंस ले रहे हैं, दे आर कमिंग आउट इन द सन। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। शायद कहीं ना कहीं हमने, हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें वैसी आजादी नहीं मिली, हमने कभी आगे बढ़ के वैसा लिया भी नहीं। सो मे बी धीरे धीरे पेरेंटिंग में भी इतनी आजादी मिली उनको, एंड देन देयर पार्ट आल्सो कि दे आर डूइंग, आई फील दे जस्ट नीड डायरेक्शन, ठीक गाइडेंस। आप यस। उनको ऑप्शन क्या क्या है बता दीजिए, वो बच्चे ढंग से चुन लेंगे। वो कान पकड़ के यही करो वही करो वाला टाइम भी हम्म, गया। एंड देन ये भी कि अगर आप छोड़ देंगे उनको, देन फिर सबके सब वो क्या कैमरा लेकर के नाचते रहेंगे इधर उधर सारे ही। yeah. किसी न किसी को तो सोसाइटी संभालनी है ना, कार्यभार किसी न किसी को तो बिल्कुल। आगे बढ़ानी है। हर कोई आई बिलीव इन्फ्लुएंसर बन कि जाएगा, यस, कमाएगा यस। कौन, उगाएगा कौन? नहीं, certainly I think they are full of energy, and what all is required are good role models and guidance। कि उनको रोल मॉडल ठीक है वो एग्जैक्टली। सही मिल जाए, वो नाचना गाना वगैरह ठीक है, इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट इट शुड नॉट बी द ओनली एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और इट जिंदगी में कांट जो बी द जरूरी ओनली है। एस्पेक्ट, तो फिर हाँ, सोसाइटी डूम्ड है वो। डूब कुछ जाएगा लोग तो बिल्कुल। इंतजार कर ही रहे होंगे ऐसे कंट्रीज में, ऐसे ये में जहां पर की यूथ बिल्कुल ही यही सब मिला, क्योंकि 10 साल बाद सर जब अनाज ही नहीं उगेगा, जब आपकी हम्म, पॉलिसीज ही नहीं बनेंगी, जब हम्म, अस्पताल चलाने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या, हम्म। वही है समाज का अंत फिर। तो समाज एंड का। ऐसा नहीं है कि बच्चे पूरी तरीके से, दे जस्ट नीड गुड मॉडल्स, दे वांट गुड गुड रोल मॉर्निंग। मॉडल्स। पिछली जो रील मैंने बनाई थी, एक 2 मिनट का इंटरव्यू ही तो था हेड ऑफ हम्म, डिपार्टमेंट्स का ना, 2.5 मिलियन 2 दिन में। ऑब्वियसली बच्चे चाह रहे हैं, दे वांट इट। हम्म, कोई बता नहीं पा रहा चाह रहा, क्योंकि जो जिस जिस पीढ़ी ने सब कुछ अचीव किया हुआ है उनको इंस्टाग्राम नहीं आता। नए वाले बच्चे हैं हम्म। उनको इंस्टाग्राम नहीं आता है, तो बच्चे बीच के हम लोग मिलेनियल, तो हमने थोड़ा सीख लिया तो डाल दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं सर, एंड certainly I hope कि we all will take, I mean especially who are between this age group of 35 to 45, we have to take this responsibility now कि हम लोग भी अपना एक रोल प्ले करें, एंड आई बिलीव दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट रोल राइट नाउ फॉर अस। तो एंड देना आई ही होगा, आउट ऑफ ये देना ही होगा हमें। वी हैव टू बिल्कुल। स्पेयर सम टाइम एंड गाइड। Got it. And I think, sir, this Edshala platform, the thought process with which I started it, तो वो काफी आई थिंक आपसे बात करके मुझे भी और क्लैरिटी मिला एग्जैक्टली कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और अरे सर्टनली सर, आप प्लेजर साथ ऑल रहेंगे, मीन, एंड मतलब पीपल लाइक यू, सो वील सर्टनली डू गुड थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द यूथ। मैं तो आता जाता रहूंगा, मुझे भी बड़ी अच्छी वाई भाई। हम्म। तो बी माई ऑनर की, थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है हम लोग का, हाँ, और नहीं, कुछ नहीं, नहीं है। इसमें वो हम प्लान ऐसे कर लेंगे चीजें एज पर वो, क्योंकि वो हमने हमेशा देखा कि फॉर द डॉक्टर्स टाइम विल ऑलवेज बी द प्रॉब्लम। तो बट ये है कि हाँ, द थिंग दैट वी आर डूइंग इज इम्पोर्टेंट। मतलब आई थिंक आज के हमारे कन्वर्सेशन में एक ये रियलाइजेशन मुझे भी हुआ कि भाई ये अब खाली एक काम नहीं रह गया है, ये आई थिंक एक नेसेसिटी बन गई है, विच वी हैव टू टेक अप नाउ। तो नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके मुझे, एंड विल सर्टनली, अभी तो हम लोग ये फॉर्मली ऐसे मिले, फिर एक दिन कभी आराम से बात भी करेंगे। So, thank you, Dr. Kushag, for your time and honesty. This conversation was about becoming better doctors and building a safer, more ethical healthcare system. This is Achala Podcast, Learning Beyond Textbooks.